Good afternoon, dear student. ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତେଜରାମ ସାହୁ କନକତୁରା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 4ର କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ ତଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଉପପାଦ୍ୟ 33, ଉପପାଦ୍ୟ 34, ଉପପାଦ୍ୟ 35 ପୂର୍ବ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସାରିଛେ। ତଥାପି କିଛି ପୂର୍ବ ପାଠର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଏଇ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଦରକାର ତାହାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଭୂମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ଭୂମି ଏବଂ ଭୂମି ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଉପପାଦ୍ୟ 33 ଏବଂ 34 ଏବଂ 35 କୁ ଆମେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେବା। ଏକା ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଏକା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଏକା ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଏକା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ମନେକର ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର AB ଏବଂ CD ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏହି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଛି XY MM ଏବଂ ସେହି ଏକା XY ଭୂମି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଛି XY CN। ତାହେଲେ ଏହି ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ହେଲା XY ଟା ଉଭୟ XY ଭୂମି ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଏକା ସମାନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅତଏବ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେବ। XY CN ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ହେବ XY NM ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏକା ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଏକା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଏକା ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଏକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ମନେକର ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା AB ସମାନ୍ତର CD ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। XYZ ଏବଂ ସେଇ ଏକା ଭୂମି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ XYZ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ହେବ, ମନେକର ଗୋଟେ XYN ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପାଦ୍ୟ ଡିସ୍କସ କରିବା। ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନଙ୍କର ଭୂମି ସମାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେବ। ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ମନେକର ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ABC ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ TEF ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଏବଂ BC is equal to EF। BC is equal to EF ଏବଂ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେଲେ ଆମର ଉପାଦ୍ୟ କହୁଛି କି ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମନେକର ଉଚ୍ଚତା AM
और यार उच्चता है dn। उभय त्रिभुजर उच्चता समान हो अर्थात एठारे कौन हो एठारे am is equal to dn। तो ये उपाद्य कौन जदि एबीसी त्रिभुज एवं डीईएफ त्रिभुज रो क्षेत्रफल समान एवं उभय त्रिभुज बीसी उभय त्रिभुजर भूमि बीसी एवं ईएफ जदि समान हुए ताहले उपाद्य अनुसार एहार उच्चता द्वय समान हेबो। तो यही तीनोटी उपाद्य को बेस करी आमे आज अनुशीलनी 4 रो क विभाग एवं ख विभाग रो किछि नंबर समाधान करिबा। वर्तमान क विभाग रो प्रश्न नंबर 1 तल लिखित चित्र गुड़िक मध्यरु केउथिरे चित्रित शेडेड त्रिभुजर क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफलर अर्धेक बा अधा। एठारे हम 5टी चित्र दिया हिची। तो एई 5टी चित्र मध्यरे केउ चित्र गुड़िकर त्रिभुजर क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफलर अर्धेक हेबो। तो त्रिभुजर क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफलर अर्धेक हेबा पई हमर कोन दरकार कि जदि उभय त्रिभुज और सामंतरिक क्षेत्र भूमिटा एका होइतबा कथा एवं एक समांतर मध्यरे रहिबा दरकार। तो देखिबा एई चित्र गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक उभय त्रिभुज एवं आयत क्षेत्र भूमि एक अछि एवं एक समांतर मध्यरे अवस्थित अछि। तो फास्ट चित्र रे एडी त्रिभुजर भूमि को जदि हमें एडी नमा एवं आयत क्षेत्र भूमि को जदि हमें एडी नमा ताहले उभय त्रिभुजर भूमि समान एवं उभय त्रिभुज गोटे समांतर मध्यरे अवस्थित। तो एठारे फास्ट हेबो कि ए बी सी डी आयत क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल ए डी ई त्रिभुजर क्षेत्रफलर 2 गुण हेबो अर्थात फास्ट हेबो। ठीक से परि सेकंडा एही चित्र रे मध्य ए बी ई त्रिभुजर भूमि जदि हमें ए बी नेमा एवं ए बी सी डी आयत क्षेत्रर जदि भूमि ए बी एका भूमि अछि एवं उभय त्रिभुज एवं आयत क्षेत्र गोटे समांतर मध्यरे अवस्थित अछि। अतएव यह मध्य हेबो कि त्रिभुज ए बी रो 2 गुण हेबो ए बी सी डी आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल किंबा आयत क्षेत्रर अर्धेक हेबो ए बी ई त्रिभुजर क्षेत्रफल। किंतु चित्र नंबर 3 रे देख पिला माने एठारे जदि हमें डीसी को भूमि नेबा ताहले एहार उच्चता एक समांतर मध्यरे अवस्थित नहीं। उच्चता एठारे सीटा गोटे समांतर मध्यरे अवस्थित नहीं तेणु चित्र नंबर 3 टा हेबो नहीं। अर्थात डी सी ई त्रिभुजर क्षेत्रफल ए बी सी डी आयत क्षेत्रफलर 2 गुण हेबो नहीं। तापरे चित्र नंबर 4 एठारे ए बी सी डी आयत क्षेत्र रे ए बी सी त्रिभुज अटे एवं ए बी सी त्रिभुज रे ए बी हला भूमि आयत क्षेत्र मध्य भूमि हला ए बी एवं एहार उच्चता एडी उच्चता एडी ए बी एवं सी डी समांतर मध्यरे अवस्थित। अतएव चित्र नंबर आदि भी हेबो कि ए बी डी त्रिभुजर क्षेत्रफल ए बी सी डी आयत क्षेत्रफलर अर्धेक हेबो। तापरे नेक्स्ट चित्र नंबर 5 देखो पिला माने त्रिभुज हला ए बी त्रिभुज हला एवं एहार उच्चता ए बी एवं सी डी समांतर मध्यरे अवस्थित नुह ए बी एवं सी डी मध्यरे अवस्थित नुह। अतएव
এবি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রর ক্ষেত্রফলর অর্ধেক ହେବ ନାହିଁ। তো কেউ চিত্র গুড়িক অর্ধেক ହେବ? চিত্র ফার্স্টটা ହେବ, তারপরে সেকেন্ডটা ହେବ, তারপরে আইভিটা ହେବ। তারপরে নেক্সট क्वेश्चन কু ଯିବା। চিত্র 4.15 ର ফার্স্ট এবং সেকেন্ড রে চিহ্নিত অংশদ্বয়ের ক্ষেত্রফল কাহিকি সমান? চিত্রিত অংশ এଠାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ଦଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ସେଡେড ହୋଇଛି, ଏ ସେଡେড ର ক্ষেত্রফল কাহিকি সমান? দেখ পিলামানে এଠାରେ এই যে চিত্রিত অংশ উভয় গোটিয়ে গোটিয়ে ত্রিভুজ অটে, উভয় গোটিয়ে গোটিয়ে ত্রিভুজ অটে। আমি জানিছু যে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল যদি ভূমি এবং উচ্চতা দত্ত থিলে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা। তো এଠାରେ ভূমি হেলা, ফার্স্ট চিত্রে ভূমি হেলা 6 দেইছি এবং এହାର উচ্চতা দেইছি 4। তো ক্ষেত্রফল কেতে হেব? ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হইব হাফ ইন্টু 6 ইন্টু 4 ইজ ইকুয়াল টু 2 দুणे 4 6 দুणे 12 বর্গ মিটার। ঠিক সেইপরি চিত্র 2 রে ভূমি যদি হেব 8 এবং এହାର উচ্চতা দিয়েছি 3, তো এହାର ক্ষেত্রফল হইব ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু 8 ইন্টু 3 ইজ ইকুয়াল টু 2 একে 2 2 4 8 4 3 12 বর্গ মিটার। অতএব উভয় ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল 12 হেলা। অতএব উভয় ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমান ହେବ। নেক্সট क्वेश्चन কু ଯିବା। ত্রিভুজ এবিসি রে বিসি ও এসি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 16 সেন্টিমিটার ও 12 সেন্টিমিটার। দেখ দেখ পিলা, ত্রিভুজ এবিসি রে ত্রিভুজ এ বি সি রে ত্রিভুজ এবিসি রে বিসি ও এসি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 16 এবং 12 সেন্টিমিটার। বিসি র দৈর্ঘ্য হেলা 16 সেন্টিমিটার এবং এসি র দৈর্ঘ্য হেলা 12 সেন্টিমিটার। এ রু বিসি উপরে পতিত লম্বর দৈর্ঘ্য, এ রু বিসি উপরে পতিত লম্বর দৈর্ঘ্য দিয়েছে 9 সেন্টিমিটার, 9 সেন্টিমিটার। হেলে ফার্স্ট হেলা क्वेश्चन ত্রিভুজ এবিসি র ক্ষেত্রফল স্থির কর। ত্রিভুজ এ বি সি র ক্ষেত্রফল আমি জানিছু কি যদি ভূমি এবং ভূমি প্রতি অঙ্কিত লম্ব দত্ত থিলে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা, হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা। এঠারে হাফ যদি আমি বিসি কু ভূমি নেই যা তাহলে হাফ ইন্টু 16 ইন্টু উচ্চতা হয়ে গলা 9, 2 অষ্টা 16 9 অষ্টা 72 বর্গ সেন্টিমিটার। অতএব ত্রিভুজ এবিসি র ক্ষেত্রফল হেলা
72 वर्ग सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन कही बी रु एसी उपरे पतित लंबर दैर्घ्य निर्णय कर। बी रु एटा हला बी एसी उपरे जदि एसी केटे भूमि नहीं जिमा एसी उपरे पतित लंब मन कर बी एन मन कर एम हेले हमको बी एन लंबर दैर्घ्य निर्णय करने को हेबो। तो आमे जानिछु जे त्रिभुजर क्षेत्रफल समान हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता। एठारे जदि आमे भूमि को एसी को भूमि नेमा उच्चता हे जिवो bn। तो एठारे पुणी त्रिभुजर क्षेत्रफल हेबो बा हाफ इंटू एसी इंटू bn इज इक्वल टू एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल implies that हाफ इंटू एसी देइछ हमको 12 हाफ इंटू 12 इंटू bn हमको मागिछि bn इज इक्वल टू आमे पूर्वर बाहर करछे कि एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इज इक्वल टू 72। तो एटा हिबो 72 ना कटि जिवो 2 1 2 212 6 इंटू bn इज इक्वल टू हेगला 72 हेले bn इज इक्वल टू हिजबो 72 गुणन अछि आरे पटे पले गले हरण हिजबो 72 हरण 6 6 1 6 6 1 6 6 दुणे 12। तो हमर bn उच्चता हिजबो 12 सेंटीमीटर। तो एठारो हमें पाइला त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल स्थिर कर। एबीसी रो क्षेत्रफल हैला 72 वर्ग सेंटीमीटर एवं बी रु एसी उपरे पतित लंबर दैर्घ्य हैला 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 4 एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्र रे ए बी सी डी सामांतरिक क्षेत्र रे एन परपेंडिकुलर टू बीसी माने एन टा बीसी प्रति लंब एवं एएम परपेंडिकुलर टू सी डी। बीसी रो दैर्घ्य देछि 25 सेंटीमीटर। बीसी रो दैर्घ्य देछि 25 सेंटीमीटर। बीसी रो दैर्घ्य देछि 25 सेंटीमीटर। एएन रो दैर्घ्य देछि 10 सेंटीमीटर। एएन रो दैर्घ्य हला 10 सेंटीमीटर। सीडी रो दैर्घ्य देछि 15 सेंटीमीटर। सीडी रो दैर्घ्य देछि 15 सेंटीमीटर। हेले हमको मागिछि फास्ट एएम केते हेबो स्थिर करो। एएम सीडी प्रति लंब। तो आमे जानी छे कि ए बी सी डी सामांतरिक क्षेत्र रे भूमि जदि 25 एवं उच्चता देछि ताहेले सामांतरिक क्षेत्र रो क्षेत्रफल समान बीसी इंटू एएन। ठीक सही परी जदि आमे सीडी को भूमि नेमा एवं एएम को उच्चता नेमा ताहेले पुनी सामांतरिक क्षेत्र रो क्षेत्रफल होइबो सीडी इंटू एएम। उभय क्षेत्र रे सामांतरिक क्षेत्र रो क्षेत्रफल समान हेबो। ए बी सी डी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्षेत्रफल इज इक्वल टू बीसी इंटू एन इज इक्वल टू सीडी इंटू एम। सीडी इंटू एम हेले आमे तीनोटी बीसी जगह बीसी रो मूल्य एन जगह एन रो मूल्य एवं सीडी जगह सीडी रो मूल्य प्रयोग कर दिले आमे एम रो मूल्य पाई जिबा। implies that बीसी हला 25 इंटू एन हला 10
इज इक्वाल टू CD CD है 15 इंटू AM AM समान केते हेबो AM इक्वल टू हो 25 गुणन 10 बाय 15 5 दूने 10 5 3 15 25 दूने 50 बाय 3 50 बाय 3 अतएव AM केते हेबो 50 बाय 3 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन कोइछि त्रिभुज ABC रो क्षेत्रफल स्थिर कर। त्रिभुज ABC देखो पिला माने त्रिभुज ABC A B C त्रिभुज रो क्षेत्रफल हबो यदि हमें BC को भूमि नेबा एवं AM को लंब नेबा बा उच्चता नेबा ताहले हाफ इंटू BC इंटू AM हेबो। सेकंड क्वेश्चन त्रिभुज ABC रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AN इज इक्वल टू हाफ BC देछि 25 इंटू AN हला 10 काटी दमा 2 5 10 25 5 125 क्षेत्रफल माने वर्ग सेंटीमीटर एति वर्ग सेंटीमीटर। अतएव ABC त्रिभुज क्षेत्रफल केते हेबो 125 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन ला ADC त्रिभुज रो क्षेत्रफल त्रिभुज ADC रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू एठारे ADC एठारे हाफ एटा ADC त्रिभुज क्षेत्रफल तो एटा जदि हमें CD को भूमि नै जिबा AM को लंब नै जिबा ताले हाफ इंटू CD इंटू AM हिबो केते हेबो हाफ इंटू CD इंटू AM हाफ इंटू CD जारे लिखिबा केते CD जारे लिखिबा ना 15 सेंटीमीटर। AM हमें आगरो निर्णय करिसे 50 बाय 3 50 बाय 3 3 खन्नारे करि जबो 3 1 3 3 5 15 2 1 2 एटा 25 हो जबो 25 5 125 वर्ग सेंटीमीटर। तो ADC त्रिभुज क्षेत्रफल हो जबो 125 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तत्व मान अनुଯାयी निम्नलिखित सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर जहार उच्चता एवं भूमिर दैर्घ्य देछि। एटा बहुत सिंपल आमे जानिछे कि सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल समान भूमि इंटू भूमि प्रति अंकित लंब। तो फास्ट देछि भूमि देछि केते भूमि देछि 10 सेंटीमीटर उच्चता देछि 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो भूमि इंटू उच्चता अर्थात 10 गुणन 5 समान 10 पंचे 50 वर्ग सेंटीमीटर। सेकेंड गोटे बाहुर दैर्घ्य 18 मीटर एवं विपरीत समांतर बाहुर उच्चता है 7 सेंटीमीटर। देख पिला माने एठारे गोटे मीटर रे देछि एवं गोटे सेंटीमीटर रे देछि। तो बाहुर दैर्घ्य देछि बाहु देछि 18 मीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एवं दूरता वा उच्चता देछि 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल एटा हिबो क्षेत्रफल इक्वल एटा भी भूमि इंटू उच्चता 180 इंटू 7 7 शून्य 0 7 8 56 7 के साथ 7 5 12 ऐसे वर्ग
सेंटीमीटर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 समुद्र क्षेत्र भूमिर दैर्घ्य देछि 120 डेसीमीटर एवं ताहार विपरीत एक कणिक बिंदु अंकित लंब अर्थात उच्चता देछि 22 डेसीमीटर। एठारे क्षेत्रफल पुणी केते आइबो क्षेत्रफल इक्वल टू भूमिर दैर्घ्य इंटू भूमिर दैर्घ्य 120 इंटू लंब देछि 22 तो 120 इंटू 22 इज इक्वल टू गुणन कर देबा 120 गुणन 22 2 0 0 2 2 4 2 1 2 0 4 2 0 0 2 2 4 2 1 2 2 0 0 2 2 4 2 1 2 0 4 6 2640 2640 वर्ग डेसीमीटर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चित्र 4.19 रे एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी चित्रटा मिस्टेक अछि एक्स बी सी वाई इटा एक्स हो एक्स बी सी वाई एक्स बी सी वाई एक समुद्र क्षेत्र एवं एपी परपेंडिकुलर टू इटा हला ए हला पी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एवं सीक्यू परपेंडिकुलर टू एबी एबी ठीक है। तो चित्र ए चित्र रे एपी एपीटा बीसी प्रति लंब एवं सीक्यू एबी प्रति लंब एवं एक्स बी सी वाई एक सामांतरिक क्षेत्र हेले हमको कौन निर्णय करने को अच्छी निम्न मान अनुजाई त्रिभुज एबीसी और एक्स बी सी वाई सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर एवं दर्शाओ जे एबीसी रो क्षेत्रफल एक्स बी सी वाई सामांतरिक क्षेत्रफल अर्धेक हेबो। तो फास्ट हमको कौन निर्णय करबो हबो ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल बीसी देछि फास्ट बीसी देछि 16 बीसी देछि 16 सेंटीमीटर एपी देछि 6 सेंटीमीटर। तो एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल हेबो त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमें जानिछु त्रिभुजर क्षेत्रफल समान हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता एठारे भूमि बीसी एवं उच्चता एपी अतएव हो हाफ इंटू बीसी इंटू एपी हाफ इंटू बीसी इंटू एपी हाफ इंटू बीसी हेला 16 एपी हेला 6 हमें काटी देले 2 2 1 2 2 8 16 848 वर्ग सेंटीमीटर। एबीसी त्रिभुज क्षेत्र तब एक्स बी सी वाई सामुद्रिक क्षेत्रफल तो एबी देछि केते एबी देछि 12 सेंटीमीटर और सीक्यू देछि 8 सेंटीमीटर। तो एक्स बी सी वाई सामुद्रिक क्षेत्रफल कौन हम एक्स बी सी वाई सामांतरिक
क्षेत्रर क्षेत्रफल इक्वल टू कौन हम एठारे जदि आम भूमि को बीसी नेमा एवं उच्चता नेमा एपी ताहले 16 इंटू 6 इक्वल टू 1696 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको कौन निर्णय करने को कि एबीसी त्रिभुज एवं एक्स बी सी वाई सामंतर क्षेत्रफल निर्णय कला एवं दर्शाओ जे एबीसी त्रिभुज क्षेत्रफल एक्स बी सी वाई सामंतर क्षेत्रफल अर्धेक। देख आम एबीसी क्षेत्रफल बाहर कला केते 48 48 एवं सामंतर क्षेत्रफल बाहर केते 96। तो यार द्विगुण है कि नहीं अतएव लिखिपर आम ये एबीसी त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल इज इक्वल टू एक्स बी सी वाई सामंतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफलर अर्धेक। बुझेला पिला माने देख एबीसी त्रिभुज क्षेत्रफल 48 बाहरला आउ एक्स बी सी वाई क्षेत्रफल 96 बाहरला अर्थात 96 रो अर्धेक हैला 48। अतएव एबीसी त्रिभुज क्षेत्रफल एक्स बी सी वाई सामंतरिक क्षेत्रफल अर्धेक। नेक्स्ट तो किछि गृह कार्य अछि या घर करके आनिब। पार्श्वस्थ पिला माने खाता लिखि नियो एटा को घरे चेष्टा करिवो करिवा पई। फर्स्ट क्वेश्चन हला पार्श्वस्थ चित्र एक्स बी सी वाई एक सामंतरिक चित्र हेले ए बी सी त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात एक्स बी सी वाई सामंतरिक क्षेत्रफल केते हेबो। ऑप्शन देछि 1:2 1:3 1:4 1:5 ए घरे चेष्टा करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन गृह कार्य एटा को समस्ते लिखि नियो आ समस्ते या को घरे करिवा पई चेष्टा करिवो एवं एही क विभाग एवं ख विभाग रो आउ जदि किछि नंबर रहि जाइछि ताहाकू समस्ते निज निज गणित शिक्षक ठारू बुझी नेब। आशा करछि आजिर शिक्षादान समस्ते बुझी पाइथिबो बोली मोर आशा। आउ आजिर शिक्षादान को एइठिरे समाप्त करछि। धन्यवाद।